اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی یہ ہماری علیکم فارسی السلام ورحمۃ بالکل اللہ. ابتدا سے ہے، بالکل ابتدا سے ہے، الف سے سمجھ لیجیے ایک طرح سے. لہٰذا جن کو آتی ہے وہ آتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے رہیں کچھ دن جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا. جتنا میں سکھاؤں اتنا آپ کو پریکٹس کر کے آنی ہے. سب سے اہم بات کوئی سی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ سب نے زبانیں کچھ نہ کچھ سیکھی ہوں گی، آپ نے تجربہ کیا ہوگا اور تجربے کار لوگوں نے اور آپ کے اساتذہ نے، استاد نے، ٹیچرز نے بتایا بھی ہوگا. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اسپیکنگ کے لیے سب سے پہلے کم سے کم 4-5 ہزار یا اتنے ورڈز یاد ہونے چاہیے. چیزوں کے نام، ڈاکٹری سامان، کھانے پینے کے سامان، گھریلو سامان، فروٹس، سبزیاں، یہ ان چیزوں کے نام ہمیں یاد ہوں تبھی تو گفتگو کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں کوئی سی بھی زبان میں. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ کچھ ورڈز بھی لکھواتے چلیں تاکہ پھر ان کے ساتھ جملے بنانے میں ہمیں آسان ہو، بول چال میں آسان ہو. تو سب سے پہلے جب ہم کسی سے فارسی میں کوئی بھی زبان کا ہو جب ملتا ہے تو سب سے پہلے ہائے ہیلو کہتے ہیں. ہاؤ ہیلو جو ہوتی ہے یعنی احوال پرسی بولتے ہیں، اس کو فارسی میں بولتے ہیں احوال پرسی. لہذا ایک ہوتا ہے معرفی کردن. کیا ہوتا ہے؟ معرفی کردن. معرفی کردن یعنی انٹروڈکشن کرانا. انٹروڈکشن کرانا، میں ابھی کہوں سلام، میرا نام یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ انٹروڈکشن کہلاتا ہے. تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام. جی سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں. وہ سامنے والا بھی کہے گا سلام، مثلا سامنے والا بھی کہے گا سلام. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم اپنا نام بتاتے ہیں تاکہ اس کا نام پوچھ سکیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پوچھتے سلام. جی کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اسم من احمد. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بھی، یا آپ کہیں گے سلام، وہ کہے گا سلام. اب وہ کہے گا اسم من مثلا راغب. اسم من راغب. آواز آ رہی ہے سب کو کلیئر؟ بھلے آقا. جی آقا. بھلے آقا. جی آقا. بھلے آقا. کلیئر نہیں ہے. وہ جس کے ایسی پرابلم ہے وہ کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کر لیں، دوبارہ کاٹ کے کنیکٹ کر لیا کریں، نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے. اسم من راغب. اب میں آپ سے کہتا ہوں اسم من احمد است. اسم من آپ کہیں فاطمہ است. اسم من مثلا خالد است. اسم من محمد است. بلے بھلے آقا. اسم من راغب است. اسم شما چیز، اسم شما چیز، اسم شما چیز یعنی ایک نئے مثلا یہاں پر آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مثلا راغب ہے اور یہ مثلا احمد ہوں مثلا. تو اب راغب کسی سے ملتے ہیں تو کہے گا سلام، تو کہے گا سلام. ابھی کہے گا اسم من راغب است، میرا نام راغب ہے. اسم شما چیز، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اب یہ کہے گا اسم من احمد است. اسم من احمد است. بھلے اسم من احمد است. راغب نے کہا سلام، اس نے جواب دیا سلام. انہوں نے کہا اسم من راغب است. بولیے اسم شما چیز، آپ کا کیا نام ہے؟ مہمان راغب است. مہمان احمد است. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک ایک کر کے مثال کے طور پر ایک ایک کر کے میں آپ سے نام لے کے کہتا ہوں. اب میں کہوں اسم من احمد است. اسم شما چیز، بولیے آپ کا مہمان شاہین است. اسم من معراج فاطمہ. بھلے
तो क्या करना है सबसे पहले इसमें मन अजीमस इसमें शाहीनस। जी माइक बंद करके भी आप बोल सकते हैं ताकि आवाज सबको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस बस बोलना मकसद है, क्योंकि मैंने आप लोग जो पहले आए हैं उनको भी बता चुका हूँ कोई सी भी जबान, आप कितनी जबानें आप लिखना पढ़ना जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम जबान पे कितना भी आसान वर्ड हो, जब तक हम जबान पे नहीं लाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो जबान पे चढ़ ही नहीं सकता वो वर्ड। इसलिए आप जैसे यहाँ पर का सलाम, इस मेहमान अहमद, बोलिए सलाम, इस मेहमान अहमद, इसमें शुमा चीज, इसमें शुमा चीज, इसमें मन शदीद से अहमद या इस मेहमान फातिमा, सूफिया, इस मेहमान ज़हरास, भले दोस्तान वाले तो अभी हमने भले आगा मुतवज्जे शुदा। फिर उसके बाद जब इंसान सलाम करके नाम पूछ लेता है तो फिर क्या कहता है? ना ये कहेगा इस मेहमान अहमद, इसमें शुमा चीज, उसने तो नाम बता दिया है, उसने नाम बता दिया। अब ये क्या कहेगा? हाल शुमा खूबस्त, हाल शुमा खूबस्त, यानी आप खैरियत से हैं, हाल शुमा खूबस्त, हाल शुमा खूबस्त, तो ये कहेगा मुतशक्किराम यानी शुक्रिया, मुतशक्किराम, मुतशक्किराम, मन खूब हंसता। आका साहब इसमें शुमा चीज को क्या बोलेंगे? जी इसमें शुमा चीज, इसका मीनिंग क्या होगा? आपका क्या नाम है? अभी जब मैं इशारा किया तभी समझ जाना था। सलाम, इसमें मन रागिब, बस मेरा नाम रागिब है, इसमें शुमा चीज, आपका क्या नाम है? तो इसने कहा इसमें मन अहमद। अब इसने कहा हाल शुमा खूबस्त, आपके हाल ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो कहेगा मुतशक्किराम, शुक्रिया, मन खूब हंसतम, मन खूब हंसतम, मुतशक्किराम, मन खूब हंसतम। आगा जान जरा इसका तर्जुमा बता दें। मुतशक्किरा मन खूब हंसतम। देखिए तर्जुमा नहीं, हम फारसी स्पीकिंग कर रहे हैं। कोई सी भी जबान जब हम अपनी जबान से सीखते हैं तो सख्ती से सीखते हैं, देर से सीखते हैं। हम फारसी से फारसी सिखाएंगे। आप नाम है ये, इसमें मन रागिबस, इसमें शुमा चीज, आपका क्या नाम है? तो कहेगा इसमें मन अहमदस। हाल शुमा कहूंगा हाल शुक्रिया, हाल शुमा खूबस, आपके हाल ठीक है? तो क्या मुतशक्किराम, शुक्रिया, मन खूब हंसताम, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आगा, मुतशक्किराम, शुक्रिया, मन खूब हंसताम, मन खूब हंसताम। निकाह कुनी दोस्तान देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? जी भले आगा। मैं कहूँ सलाम, जी मैं कहूँ सलाम, इसमें मान अहमद, इसमें शुमा चीज, कहिए इसमें मान इसमें मन अहमद, इसमें हाल शुमा खूबस्त, मुतशक्किराम, मुतशक्किराम, मन खूब हंसतम। अब ये आगे सवाल करने का मन खूब हंसतम के बाद ये कहेगा शुमा खूब हस्ती, शुमा खूब हस्ती। तो आगा ये बता दीजिए, दूसरी लाइन से ये डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल। जब दो लोग हैं, एक इंसान है रागिब, एक है अहमद, इन दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई, ठीक? तो इसने कहा सलाम, तो इसने कहा सलाम, इसने कहा इसमें मान रागिब, मेरा नाम रागिब है, इसमें शुमा चीज, आपका नाम क्या है? तो इसने कहा इसमें मान अहमद। फिर उसने पूछा हाल शुमा खूबस, तो इसने कहा मुतशक्किराम, मन खूब हंसताम। फिर इसने कहा हाल शुमा, इसने कहा मुतशक्किराम, मन खूब हंसताम। फिर कहा शुमा खूब हंसती। अब इसने कहा तुम ठीक हो? तो उसने कहा भले, हाँ मन खूब हंसताम, मैं ठीक, मैं भी ठीक हूँ, मन हम यानी ऑल्सो टू, मन भले, मन हम खूब हंसताम, मैं भी ठीक हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है। पहली बात तो स्क्रीनशॉट मजबूरी है, लिखना अहम है। सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। लिखा आप लोगों ने?
मिटा दूं? जी जी बोले आगा जी आगा आगा मिटा दूं? आगा आगा लास्ट लाइन में बाले वाजे करें कौन सा वर्ड? भले मन खूब आगा बराए हंसता, मेहरबानी लास्ट वाली लाइन को वाजे कर दीजिए। भले मन भले खूब मन हम खूब हंसतम, भले यानी हाँ, मन हम मैं भी खूब हंसतम ठीक हूँ। अभी लिखवाऊंगा मैं वर्ड्स, फिलहाल ही गुफ्तगू का आगाज करने के लिए पहले दिन ये सिखा दूं, उसके बाद वर्ड्स आते जाएंगे, मैं लिखवाता जाऊंगा। फिलहाल ये है कि रोज जैसे मैं आऊंगा क्लास में सलाम दुआ खैर खैरियत होनी चाहिए, ताकि आपको बोलचाल आगे थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चलती जाए। आज इतनी सलाम दुआ खैरियत पूछी हमने, आज सलाम नाम खैरियत, सलाम नाम खैरियत, सलाम इसमें मान अहमद, इसमें शुमा चीज, इसमें मान वसीमस, भले हाल शुमा खूबास, मान खूबास, भले मन खूब हंसता भले मन। अब आप भले मन खूब खूब हंसता हंसता हूँ। आपने कहा मैं ठीक हूँ, तो आप मेरा हाल पूछिए, शुमा खूब हंसती, भले मैं कहूँगा मन हाँ खूब हंसती शुमा खूब हंसता भले हम खूब हंसता हूँ। भले मन हम खूब हंसता भले मन हम खूब हंसता मुतवज्जो शुदी, यानी समझ में आ गया आप सबको? बोले आगा भले आगा भले भले फहमिदा बोले आगा मन नविश्तम। अब आपके लिए कल के लिए एक प्रैक्टिस है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत वो जानते हैं कि क्या करना है। मैं अभी मैं बताता हूँ, लिखिए कुछ वर्ड्स में लिखिए, सब लिखिए। देखिए मुमकिन है बहुत से लोग उर्दू सही नहीं पढ़ पाते हो, इतनी मजबूत ना हो, इसलिए क्योंकि फारसी जबान शीरीन और मीठी है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो तब। हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं तो सामने से पता लग जाता है कि ये इससे आती नहीं है या ये फारसी जबान नहीं है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि हर वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखाऊं। इन जी, इन यानी ये इन यानी ये। माइक बंद रखिए, किसका माइक ऑन है? ताहिरा काजमी किसका है ऑन? जी जी, इन यानी ये, ऑन ऑन यानी वो। इन नजदीक के लिए आता है, इन ऑन समझे? एक होता है चीज, चीज देखिए 3 से 4 दिन या 5 दिन क्लास थोड़ी बोर सी लगेगी आपको, जब तक थोड़ी बोलचाल नहीं आ जाए, ठीक है? लेकिन आप लोग बिल्कुल कोई ये सोच के कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। आप लोग मुस्तकिल आइए, 10-15 दिन बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई हमने सही किया कि नहीं छोड़ी, क्योंकि आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा हफ्ता 15 दिन में। गवाह के तौर पर यहाँ ऑनलाइन बहुत से लोग इसमें कनेक्ट हैं, उनसे पूछ लेना। यकीन ना आए तो जो यूट्यूब लिंक है उस पर जाके बुक पे देख लीजिएगा कितनी जल्दी उन्हें बोलचाल आ गई है। चीज यानी क्या है? चीज यानी क्या है? ठीक है, क्या है? अस्त यानी है है। एक कायदा याद रखिए, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते, फारसी में जो वर्ड, जिस वर्ड के आखिर में ये गोल वाली है होती है, जिस वर्ड के आखिर में गोल वाली है होती है, जैसे ये उसमें हम क्या पढ़ते हैं? फातिमा, और ये पढ़ेंगे तो खाना पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, फारसी में हर वो वर्ड जिसका आखिर में ये गोल है होती है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जेर पढ़ा जाता है। फातिमे, फातिमे मतलब ऐसे, फातिमे, खाने, खाने। मुतवज्जिह हस्ती, समझ आ रहा है आप लोगों को? बोले आगा भले आगा मासूमे। माइक डीजे सा बज रहा है, मैं इसलिए कहता हूँ कि माइक बंद रखे कीजिए, माइक डिस्टर्ब करता है। मासूमे, हम क्या बोलते हैं ऐसे? मासूमा, लेकिन फारसी में ईरानी क्या बोले? मासूमे, मासूमे। तो ये एक कुल्ली कायदा आप अपने जहन में
बिठा लीजिए। हर वो वर्ड फारसी में जिसके आखिर में गोल है होती है उससे पहले वाले यानी सेकंड लास्ट वाले हर्फ के ऊपर जेर पढ़ा जाता है। मासूमे, फातिमे, मासूमे, फातिमे, मैंने देखिए फातिमे, खाने। और कोई वर्ड ऐसा जिसके आखिर में गोल है होती हो? कहाँ है उसमें है? जाबे, काबे, काबा है, हम क्या कहते हैं? काबा, काबे, काबे। ये कायदा नियम आपके याद रहेगा हमेशा। फारसी में जिस वर्ड का आखिर में गोल वाली ये होती है, मिली हुई जो होती है, उसको सेकंड लास्ट वाले हर्फ के ऊपर सेकंड लास्ट वाले हर्फ को जेर पढ़ा जाता है। मासूमे, फातिमे, काबे, खाने, खाने। समझ में आया आप लोगों को? याद रखना ये नियम है। भले आ गए। भले आ गए। जैसे अभी जैसे मैंने अभी क्या लिखा था? बाले, बाले। क्या पढ़ेंगे इसे? बाले, बाले, बाले यानी हाँ, बाले यानी हाँ, बाले यानी हाँ, हाँ। ठीक है, उसके बाद मिटा दो उसको। लिख लिया आप लोगों ने? जी लिखा आप लोगों ने? भले आ गए। जी आज से कोई हाँ, अब यार देखिए हमने एक हर्फ सीखा। जब भी मैं कोई बोलूं, मसलन पहले शुरू में शायद उर्दू में ही बोलूंगा, लेकिन 4-5 दिन से बाद मैं फिर आपसे फारसी में बात करूंगा। तो आप बले कहना, हाँ बले यानी हाँ, लेकिन इस ना में ने नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। ठीक है ना, ना यानी नहीं। मैं कहूँ आपसे मुतवज्जिशुदीद, समझ में आया तो आप कहीं बाले, और अगर नहीं ना 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 फहमीदम। समझ में आया सबको? भले 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 मिटा दूं तो नहीं बाले, भले आगा। भले भले पार्ट लिख लेते हैं। देखिए भले मान, मान, तू, ऊ, मा, शुमा, आन, हाँ। मान, तू, ऊ, मान, तू, ऊ, मान, ऊ। मैं, तू, वो, मैं, तू, वो। मैं, तू, वो, हम, आप, वो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। कैसे समझाऊं मैं, मेरी समझ नहीं आता है कभी कभी कि मैं कैसे कहूं कि माइक बंद कीजिए जब आपके यहाँ बातें हो रही हो, काम हो रहा हो, खटपट की आवाज हो। जी मान, कई मान, तू, ऊ, मा, शुमा ऑन हाँ मान तू ऊ मा शुमा ऑन हाँ। ये माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा? डीजे सा बज रहा है, प्लीज बंद कर लीजिए। जिसके यहाँ लग रहा है कि खुद का उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो ना ऑन करे माइक। बगैर ऑन करे भी बोलेंगे तो समझ में आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मान, तू, ऊ, मा, शुमा, आन्हा, मान, तू,
ما شما آنها من تو ما شما آنها. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تینوں من تو ما شما آنها یہ سنگرل ہے. یہ میں اکیلا، تو تم اکیلا، وہ اکیلا. پھر ما ہم سب جمع پلورل، ما شما آنها پلورل. زبان پہ نہیں چڑھتا ہے. دیکھیے من تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. آپ نے کسی بھی زبان میں خاص کر کے انگلش میں دیکھا ہوگا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن یعنی میں، سیکنڈ پرسن میں اور ہم، سیکنڈ پرسن تو اور آپ، تھرڈ پرسن وہ اور وہ سب. یہی ہوتا ہے نا، سب کو معلوم ہے جی. تو جو فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کا یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل یہ جمع ہے. لہذا ان کو میں نے جو سنگولر ہیں انہیں الگ لکھا تینوں کو ایک ساتھ، اور جو جمع ہیں ان کو یہاں. من تو ما شما آنها. جی ابھی ہم نے است کے معنی دیکھے تھے، پہلے بعد میں کرا. مٹا دو اسے. پروناؤنسیشن بہت اہم ہے، تلفظ بہت اہم ہے، اسی وجہ سے میں ہندی میں بھی لکھوا رہا ہوں. بعد میں کل آگے کوئی خانہ نہ پڑھے، فاطمہ نہ پڑھے، معصومہ نہ پڑھے، فاطمے، معصومے، ایسے. اب مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے کتاب. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. این کے معنی سیکھ لیے، یہ آن کے معنی سیکھ لیے، وہ است کے معنی سیکھ لیے، ہے. تو اب ہم کہیں گے این کتاب است. این کتاب است. کاپی کو کہتے ہیں مثلا دفتر، کاپی کو کہتے ہیں مثلا دفتر. یہ نزدیک ہے. مثلا این کتاب است، آن دفتر است. این کتاب است، آن دفتر است. این کتاب است، آن دفتر است. جی اب ہم آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ورڈز ضرور لکھوائیں گے روز. آپ کو کچھ دن تک کرنا کیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں کس سے بات کروں، کس سے بولوں. نہیں، ہم خیالوں میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں. تو اس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ روٹی لڑکیاں ہیں باورچی خانے میں روٹی پکا رہی ہیں، ایک چیز کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ یاد رکھنا پوائنٹ، کبھی بھی وہ انسان جو شرماتا ہے وہ کبھی دنیا کی کوئی زبان نہیں سیکھ سکتا. یہ یاد رکھنا. دنیا کی کوئی بھی زبان اگر سیکھنی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی کہ کلاس میں ہمیں کوئی چھیڑے گا، کلاس میں ہماری مذاق بنے گی. تو یہ بات سب کے ذہن میں رکھیے کہ کسی کے بولنے پہ چاہے غلط بولے صحیح بولے، کوئی مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی ہنسے گا نہیں. اور آپ کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ شرمائیے گا نہیں، آپ ڈریے گا نہیں، کیونکہ جو ڈر اور یہ شرم ہے یہ کچھ سیکھنے نہیں دیتی. لہذا میری کلاس میں نہ تو کوئی شرمائے گا نہ کوئی ڈرے گا. آپ کو گھر میں اٹھتے بیٹھتے سامان دنیا بھر کا گھر پہ ہر ایک کے موجود ہوتا ہے. آپ کو اب سے لے کے کل اسی ٹائم تک 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ کو اسی کی پریکٹس کرنی ہے. این کتاب است، بھلے آن دفتر. یہ دو جملے نہیں ہیں، یہ ہزاروں جملے ہیں، پیٹرن ہے. آپ کتاب کی جگہ کہہ دی یخچال یعنی فریج. این یخچال است، آن خودکار است. این قلم است، خود قلم عربی میں بولتے ہیں. این مداد است، چیزوں کے نام آہستہ لکھواؤں گا تو اس کے بعد جی آپ لوگوں کو اس کی. اور اگر کوئی ورڈ ایسا ہے گھر میں چیز جس کا نام فارسی میں نہیں معلوم ہے تو آپ اردو میں بول کے این اور آن کی کریے. مثلا آپ این مثلا ڈبل بیڈ است مثلا. فی الحال جب تک پتہ نہ لگے، جب تک اس کی پریکٹس جاری رکھیے گا. اپنی زبان کھولیے گا. زبان جب تک کھلے گی نہیں تو آسان سے آسان ورڈ بھی آپ بول نہیں پائیں گے جب تک آپ کی زبان کھلے گی نہیں. لہذا اب سے لے کے کل تک آپ کے پاس گھر میں یہی کام ہے. تین چیز، ہاں چیز کے معنی بتا دیے. ابھی دیکھیں تین چیز
चीज यानी ये क्या है? ये क्या है? चीज चीज का माना हमने क्या अभी वो क्या है? चीज का माना हमने अभी वो सीखे क्या हैं। है? ये चीज ये क्या है, आन चीज वो क्या है। तो अब आपको अब से लेके कल तक आप हर चीज को देख के सवाल कीजिए। इन चीज करीब है, इन चीज दूर है, आन चीज इन चीज इन किताब है, आन चीज आन दफ्तर है, और इन चीज इन सीमस, आन चीज आन अनारस, इन चीज इन मूसस, इन आन चीज आन हिंदुआनियस, इन चीज इन ताख्ता, आन चीज आन संदलियस। आपको घर में हर सामान के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इन चीज आन चीज, इन चीज ये क्या है, आन चीज वो क्या है। जब इनको आप वो 24 घंटे में चल कर, ये भी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि इस चीज के लिए आप आधे घंटे किताब लेके बैठी, नहीं। आप बाजार जा रहे हैं, लड़के हैं बाजार सामान खरीदने जा रहे हैं, चलते चलते इन चीज इन किताब, आन चीज आन खुदकार, इन चीज इन आवाज, इन चीज इन खानुमस, इन की एक, ठीक है। ऐसे ही चलते फिरते चीजों से आप सवाल कर सकते हैं, चीजों को सोच कर आप दो दूसरा बन के आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। भले आगा। जी सलाम दुआ भी आप अपने आप भले से आगा। कर सकते हैं। अभी मैं मसलन आप दो मत जाइए। सलाम सलामकुम, फिर से एक बार बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? फिर से एक बार समझाइए। आप अभी ज्वाइन हुए जी, क्या समझाना है बताइए जी, बोलिए कौन था नहीं बोल रहे हैं? फिर से एक बार repeat अगर कीजिए। रिकॉर्डिंग रखेंगे रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग एक बार सबको जरूर सुननी है। और जिस रिकॉर्डिंग को आप भेजेंगे, ये मदरसे का चैनल है, उसको लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरों से सब्सक्राइब भी कराएंगे, ठीक है। ओके, जी शुक्रिया। तो आपको आधा सवाल है, जी अगर ये आपने लिखा है आन दफ्तर जी। तो ये दफ्तर का मानी क्या है? मैंने क्या कहा था आपसे कॉपी। कि एक बात अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग चीजों के नाम में लिखवाऊंगा, चीजों के नाम। अच्छा। मैंने ये कहा था आप आगे का कोई सवाल कोई नहीं करेगा, जितना मैं बताता जाऊं उतना सीखते जाइए, बस आगे कोई नहीं सोचेगा जी। अच्छा, मुझे लगा, अगर माजरत, मुझे लगा आपने बता दिया है, वो नेटवर्क इशू की वजह से ना। रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। रोज की जिम्मेदारी है कि उसे देख के आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इन चीज आन चीज, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये दर्स? भले फहमीदा। आगा मेरी आपसे एक गुजारिश है आगा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही जी है। जी आइए बताइए। मैं ये कह रहा था जितने भी ग्रुप में लोग शामिल हैं, जब आपको सवाल करें, असल में एक साथ अगर लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, तो उसके अलावा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर आप कुछ कह रहे हैं ना, तो वो लोगों को थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, मसलन अभी देखिए, आप वहाँ पे पहली पढ़ा रहे बात, थे। सुने, पहली बात तो मैं वही बात सबसे दोहराता हूँ जी जी। पहले जिसको मैं दोहरा देता हूँ। इन चीज इन किताब, आन चीज आन दफ्तर। मैंने एक दफा बोल दिया, अब मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, तो इसको आप लोग माइंड न कीजिएगा कि शोर हो गया, क्या हो गया। तो बात क्योंकि स्पीकिंग की है, बात स्पीकिंग की है, तो आप इस चीज को आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले वो चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद आपसे बुलवाऊंगा। जब तक मैं आपसे बुलवाऊंगा नहीं, तो मुझे यकीन है कि आप खुद से बाहर जाके क्लास से हट के बोलेंगे नहीं, लिहाजा मैं ही बुलवा लूंगा आपसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलेंगे तो आवाजें एक दूसरे की समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं है, हमारी समझ में ना आए, आपकी समझ में ना आए, वो तो बोल रहा है ना उस जुमले को, जो जुमला मैंने अभी बताया। मतलब मैंने कहा सलाम सलाम, इसमें शुमा चीज, तो आप कहिए इसमें मान अहमद हस्त। अब मैं आपसे कहूँ बोलिए इसमें शुमा चीज, आप कहिए इसमें मान, अपना अपना नाम बोलिए, इसमें मान इसमें शुमा चीज, इसमें मान खालिदा, इसमें शुमा चीज, इसमें मान रागिबा, इसमें शुमा चीज, इसमें मान, इसमें शुमा चीज। बोलिए, सब बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए। तो आप देखिए, पहले मैंने बता दिया, आप जो ये बोल रहे हैं ये शोर हो रहा है, आप ये मत कहिएगा कि भाई मेरी समझ में बोल शोर शराबा हो गया। नहीं, मैंने बता दी वो बात ना, वो तो अब मैं दोहरवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी रिकॉर्डिंग फिर मौजूद है, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर आपको वहीं मिल जाएगी। जी आगा, शुक्रिया। ठीक है जी। इस मेहमान, मैं कहूँगा सलाम सलाम, आप कहिएगा सलाम। इस मेहमान वाले हुसैन, इसमें शुमा चीज, तो आप कहिए इसमें मान वाले हाल शुमा खूबास,
तो आपका ये बाले 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 मंसूब खूब हस्ता शुमा अब आपका ये शुमाहू भी बाले मनाम खूब हस्ता बाले हस्ता बाले मन इन हम चीज खूब हस्ता बाले इन चीज इन शुमा खूब हस्ती इन चीज इन किताब आन चीज सब हस्त बाले हम दफ्तर हस्त ऑन दफ्तर است हम अब मैं कुछ दफ्तर चीजों के नाम लिखवा दूं ताकि आपको कल तक के लिए प्रैक्टिस कर सके उन वर्ड्स की, वरना तो आप कहेंगे इन आराम तो सीख लिया था, चीजों के जब नाम ही नहीं पता थे तो कैसे कहते इन चीज ये क्या है जब नाम ही नहीं पता। तो कुछ चीजों के मैं आपको अभी जल्दी से कुछ नाम लिखवा देता हूं ताकि आप गुफ्तगू कर सकें। घर में जो सामने सबसे पहले चीजें आती हैं, मसलन गिलास आता है, गिलास आता है यानी लीवान, लीवान, पॉच, पहले पॉच, यखचाल, लिबास, ये अलग से है, किताब में नहीं है, किताब में मतलब बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपकी इन आराम की प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड लिखवा देता हूँ। वाले बोलिए दीवान, बोलिए लीवान, लीवान ग्लास पांच, लिबॉन, पांच, पाल, पांच, यखचाल, यखचाल, पाउचाल, यखचाल, लिबास शुई, यखचाल, लिबास सुई लिबास से शुई, लिबास लिबास से शुई, ना लिबास शुई, लिबास शुई, हम्माम, लिबास शुई, हम्माम, 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 आशपास हम्माम, खाने, आशपस खाने, आशपस खाने, आशपस खाने, आशपास खाने। देखिए जल्दबाजी में राइटिंग पे आप मजाक मत बनाइएगा, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। लीवान, लीवान यानी गिलास, गिलास। पांच यानी जग, पांच यानी जग, यखचार यानी फ्रिज, यखचार यानी फ्रिज फ्रिज, जग, लिबास शुई, फ्रिज, लिबास शुई वाशिंग मशीन, लिबास शुई, वाशिंग मशीन। मैं बात करूंगी तेरे 5 मिनट बाद चल जल्दी बैठ रहा। देखिए माइक बंद करके Washing machine। अल्लाह के वास्ते बात कर लीजिए। अब मैं और कैसे समझाऊं, माइक ऑन करके आप घर में बातें कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन, इससे आप लोगों का भी नहीं गलत है ना, घर में पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या बातें हो जाएं, दूसरे सुनेगा, अच्छी बात थोड़ी है। आपके घर में ऐसी कोई बात हो रही हो, माइक बंद कर दीजिए फौरन। हम्माम, हम्माम, हम्माम क्या है? यानी हम्माम यानी बाथरूम, 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 आसपास वॉशिंग, खाने, बावर्ची खाना, किचन, किचन, बावर्ची खाना, किचन, किचन बावर्ची खाना। आशपस खाने, आशपास खाने, आशपास खाने, आशपस खाने, आशपास खाने, आशपास खाने। आशपस पाक को खाने, नाम, पाक को नाम मिटा दूं, लिख लिया आगा जरा एक सबने? बार इब्तिदा से बता दीजिए। देखिए मैं जब लिखूं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इतने कम टाइम में नामुमकिन है कि मैं इतना देर वेट करूं। आपको फौरन लिखना है, फौरन, जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊं फौरन। नहीं इतना जल्दी लिख सकते हैं तो आदत कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं? भले भले आप, जी मिठा दीजिए। आगा किताब, किताब, दफ्तर, खुदकार, आशपास खुदकार, मिदाद, मिदाद। खुद मजीद मैंने कहा था आगे आगे ना बोलिएगा, मैं जब जरूरत होगी मैं खुद बता दूंगा, ठीक है? अभी खुद ना अपना हाथ कर लें, जी, मिदाद, अपना हाथ नीचे कर लें, अपना हाथ नीचे कर लें। जी जी। और संदली, संदली, मीज, जी, किताब, किताब, दफ्तर, बोलिए किताब,
किताब दफ्तर 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 खुदकार खुदकार मिदाद मिदाद संदली 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 मत पढ़िएगा मीज 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 किताब यानी बुक मीज किताब यानी किताब बुक दफ्तर यानी कॉपी 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 खुदकार यानी कॉपी या ऑफिस पेन 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 खुदकार पेन मिदाद यानी पेंसिल 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 संदली चेयर संदली संदली चेयर ताक बेड ताक यानी बेड मीज यानी मेज यानी मेज यानी मीज मेज मीज टेबल मीज मेज आप एक्सप्लेन कर रहे तो दूसरे सब भी बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला है तो आप उसको दोहराइए, जभी तो मैंने बोल दिया आप दोहराइए। किताब दफ्तर किताब दफ्तर खुदकार मिदाद मिदाद संदली संदली मीज इन वर्ड्स को कल तक आपको याद करना है और करना क्या है। इन चीज इन किताबस, ऑन चीज ऑन दफ्तरस, इन चीज इन खुदकारस, ऑन चीज ऑन मिदादस, इन चीज इन संदलियस, ऑन चीज ऑन दास्तस, इन चीज इन मीजस, ऑन चीज ऑन मीजस। पहले ऐसे ही घर में इन चीजों को देख देख क्या खुद से बोलिएगा, चाहे साथ में कोई बोलने वाला ना हो तो आप खुद बोलिएगा। देखिए कोई ज्यादा बात वजनी और भारी चीज नहीं बताई मैंने आपको जी, मैंने कोई आपको ज्यादा हार्ड बात प्रैक्टिस की नहीं दी है। कौन आगा है, कौन जनाब है जो माइक ऑन करके आ रहे हैं बातें कर रहे हैं। नहीं अब देखिए आप खुद सोचिए, अब सामने गुस्सा आ जाएगा ना इस बातों पे कि इतनी देर से मैं समझाया जा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि 2 साल के बच्चे तो है नहीं कि बार बार समझाया जाइए और बार बार देखिए फिर बातें कर रहे हैं। खुदा के वास्ते आगा की बात पे मुतवज्जे रहें जी, ठीक है। तो ये इतनी हार्ड चीज मैंने आपको बताई नहीं है। इन चीज ये क्या है, इन किताब, इन यानी नजदीक के लिए, ये ऑन यानी वो, एक 24 घंटे के लिए ये थोड़े से वर्ड्स और इनकी प्रैक्टिस, इन और आन की प्रैक्टिस ज्यादा बिल्कुल नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते इन चीजों को देख के आप बार बार दोहराइए एक ही बात को बार बार। इन चीज इन किताब, ऑन चीज ऑन किताब, इन चीज इन दफ्तर, ऑन चीज ऑन दफ्तर, इन चीज इन खुदकार, ऑन चीज ऑन खुदकार, इन चीज इन मिदाद, ऑन चीज ऑन मिदाद, इन चीज इन संदलियस, ऑन चीज ऑन संदलियस, इन चीज इन दफ्तर, ऑन चीज ऑन दफ्तर, इन चीज इन मीज़र, ऑन चीज ऑन मीज़र। कोई हार्ड बात तो नहीं है ना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं आपसे प्रैक्टिस और जो इससे पहले वर्ड सिखाया उनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बात टाइम बहुत सी चीजें आपके घर में दिखाई दें जिसका माना ना पता हो तो उस वर्ड को उर्दू में बोल के इन चीज आप कह दीजिएगा इन गिलास, मसलन अगर गिलास का इसमें ना लिखा हुआ हो तो। जब तक आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स लिखवाते हुए चलेंगे। तो 2 चीजें हमने आज, 3 चीजें हमने कल को प्रैक्टिस करके आनी। पहली सलाम, वालेकुम सलाम, खूब हस्ती, इसमें मन अहमद अस्त, इसमें शुमा चीज, इसमें मन सईद अस्त, हाले शुमा खूब अस्त, भले मन खूब हस्तम, मुतशक्किरम शुमा खूब हस्ती, भले मन हम खूब हस्तम। एक तो इतनी गुफ्तगू, कितनी गुफ्तगू में क्या चीजें, सलाम, नाम, तो आपका नाम, ये खैरियत, ये 3 चीजें सलाम। तो 2 चीज, पहली चीज गुफ्तगू यानी बातचीत, दूसरा वर्ड्स और तीसरा इन चीज आन चीज, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस। 3 चीजें दी है मैंने, इसीलिए कम दे रहा हूं कि पहला दिन है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वर्ड्स जितने याद होते चले जाएंगे, जितनी जल्दी याद होते चले जाएंगे, इतनी जल्दी फारसी स्पीकिंग आपको आती चली जाएगी। और आज बात याद ये भी मत सोचना कि वर्ड्स इतने कैसे याद होंगे। आप देखिए ताख उर्दू में बोला जाता है, मीज उर्दू में बोला जाता है, किताब भी बोला जाता है, ठीक है। अक्सर वर्ड्स आपको फारसी के ऐसे दिखेंगे, आप बोलते हैं, और बहुत से वर्ड ऐसे हैं कि नहीं बोलते आप लोग, लेकिन नोहो और मर्सियों में जरूर मिल जाएंगे आपको वो वर्ड्स।
وہ فارسی ورڈز ہوتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ بالکل نہ سمجھیے گا، آسان ہے. 15 دن بعد آپ مجھ سے بتا دیجیے گا ہے نہیں آسان یا نہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. مٹا دوں اس کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد. اللهم صل على محمد